If you click on it, you get the option of search. So click on it. Yes. Now here what you have to do, you have to start with the terminal. Like in Windows, we have DOS. Similarly, in Linux, we have terminal where command-based operations are done. Fine. So we will write terminal. Please type, Shifali. Terminal. Yes. If you can see, the first option is that terminal, or on which we have to click. So yes, please. So this is a black window which appears where we are supposed to create that. Now, VI editor is one of the very powerful tool. Powerful tool in what sense? It is purely command based. Their mouse operation does not work. It is purely command based. Whatever instructions we will pass, based on that editor will work. So it is one of the very important thing. And if you want to take a screenshot, Shifali, you can take the screenshot that you have opened up the terminal, and the screenshot should be from that search. Search का भी लेना है और इसका भी लेना है. जब आप प्रैक्टिकल सबमिशन के लिए जाओगे तो सर्च जहां पे हमने टर्मिनल सर्च किया, and then the terminal window, which black window which is getting open. ठीक है, इसको आप सेव कर लीजिए. सर ये तो लिनक्स में ही सेव होगा ना? हाँ, लिनक्स में भी सेव कर सकते हैं. तो आप कॉपी टू क्लिपबोर्ड करके आप अपने मतलब बाद में इसको वर्ड में ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले सकते हो. वो आपकी सर वो बाय डायरेक्शन कमेंट ऑन करना पड़ेगा सर, वो वर्चुअल मशीन में तभी सर कॉपी होगा सर. नहीं, वो भी कर सकते हैं, या तो फिर वो बताया था ना लास्ट टाइम, स्नैपशॉट का एक जो ऑप्शन है वो भी आप यूज कर सकते हो. तो वो ऑटोमेटिकली आपका सेव्ड रहेगा. तो आपके मतलब जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो ऑप्ट कर सकते हैं आप. फाइन. टर्मिनल सर कंट्रोल ई से डायरेक्ट से होता है. हाँ, कंट्रोल ई से भी, यस, दैट इज अ शॉर्टकट दैट यू कैन डू. कंट्रोल वी, कंट्रोल ई एलिफेंट. ओके. Fine. Now what you have to do is whenever we want to create a particular file, you have to write the name of that particular file. Write the name means the command will be Shifali लिखो vi space. अब आप अपना ही नाम डाल दो, स्पेस करके अपना ही नाम डाल दीजिए आप. ठीक है. तो एवरीबडी इज गोइंग टू क्रिएट द VI एडिटर फाइल ऑन देयर ओन नेम. ठीक है. फिर उसके बाद एज सुन एज यू प्रेस एंटर, यू विल गेट इनटू अ ब्लैक विंडो स्क्रीन. एंटर मारो, एंटर हिट करो. ठीक है. दिस इज द एडिटर. एट द बॉटम इफ यू कैन सी देयर इज अ नेम विच शी हैज गिवन, एंड the symbol which you can see, that symbol indicates the number of space available for writing. That is the number of space. Now if you want to insert any data, so on keyboard there is a command that you have to press. If you press I, then only it will start getting typed. So press I, Shifali, and then type anything like hello, how are you, or something like that. Fine. Now this is, yes, you complete the sentence whatever you want to type, and then I will instruct. Sir, it's done. Like I was just typing. Okay. So what you have to do here, you have to write some kind of 1 or 2 line. अभी ठीक है, अभी अपन ने हेलो का एग्जांपल लेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे टास्क हमको इंप्लीमेंट करना है, बहुत सारे कमांड.
तो in short we will do that. Now what is that, it is in editing mode. Editing mode means whatever, अब randomly कोई भी कीबोर्ड की बटन दबाओ, एंटर हिट करो and type anything, any random thing, Shefali. Any random. No, other than S. S is a command actually. So what she has done, yes, हाँ, yes. और 2-4 लाइन लिख दो एंटर करके, और 2-4 लाइन लिख दो, so that इसके बाद के जो कमांड्स रहेंगे वो अपन परफॉर्म कर सकते हैं. Now what it is, whatever she is typing, it is getting typed in that VI editor. Now we are into insert mode, that's why it is getting edited. Now press escape, Shefali. Once you press escape, you are back into the command mode. Command mode means the different operations that you can do. Press escape, Shefali. Done? Yes, sir. सर वो कोलन WQ है ना सर, सेव करने के लिए? वो तो हाँ, वो बाद में करेंगे, पहले उसके अलावा वाले देखते हैं. अब देखो, अब आप एरो की से नेविगेट करो, एरो की से ऊपर जाता है कर्सर जो है आपका, वो नेविगेट होगा. एरो की दबाओ, एरो की. यस, नाउ यू कैन go through the data in that way using arrow key. Or if your arrow key is not working, then there is a keyboard option available, that is HJKL. So HJKL also does the same operation that your normal arrow keys does. So you can try out that also for navigation of the data. Fine. Now Shefali, go to the second line. Go to the second line. Yes. Now let's say you want to remove the particular data and you want to remove, let's say at a time 3. So what you will do, type 3 and double D. Double D stands for delete data. 3 and double D. So what happens? 3 lines were removed which she has written. Fine. So that is a command. And don't be worried कि इतने सारे कमांड हम कैसे याद रखेंगे. I have shared it with Google Classroom. Every command with what type of task that particular command does, that is very well explained in a single liner. You just have to go there, implement all the commands on this particular editor. Once you are done, make it sure that you are also taking snapshot of every command. ठीक है. अब उसमें अगर आप लोगों के पास अभी देख सकते हो, आप अगर गूगल क्लासरूम ओपन करके, तो अगर आप जाओगे देखोगे तो मेरे हिसाब से करीब उसमें ये मूविंग वाला तो मैंने आपको बता दिया, HIJKL वाला. इसके ऊपर में कुछ जो एडिटिंग वाले जो कमांड्स है वो करीब हैं, करीब 10 से 11 जो नॉर्मल एडिटिंग कमांड्स हैं फॉर VI एडिटर. तो उसमें भी हमने कुछ सर वो कंप्यूटर में ऑन करना है. कंप्यूटर मतलब जब आप इंप्लीमेंट करोगे तो वो उसको रख सकते हो रेफरेंस के लिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको कौन सा कमांड करना है उसके लिए, क्योंकि अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट नहीं कि मोबाइल पे. तो मोबाइल का तो सिंक्रोनाइजेशन वाला होगा ना आपका, क्योंकि ऑफिशियल ईमेल से आप होंगे. यस सर. नहीं, मोबाइल से तो नहीं पता, लेकिन लैपटॉप से अगर करोगे तो उसमें आसानी से हो जाएगा. और उसमें मैंने वो वर्ड डॉक्यूमेंट शेयर किया है जिसमें डिफरेंट कमांड्स हैं. तो जैसे अपने नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट में कैसा रहता है, अंडू रहता है, फिर अंडू के भी उसमें ऑप्शंस हैं, और डिलीट वाला मैंने आपको बताया ही है. फिर उसके बाद कर्सर नेविगेशन का भी है. डिलीट पर्टिकुलर वर्ड, एक पर्टिकुलर वर्ड को डिलीट करना है तो उसके लिए DW कमांड है. अगर एक साथ कंटिन्यूसली 3 to 4 वर्ड्स रिमूव करना है तो 3DW या 4DW कमांड है, जो जिसका यूज करके हम पर्टिकुलर उस कर्सर के पोजीशन से लेके तो फॉरवर्ड पोजीशन तक वो प्रोसेस कर सकते हैं. तो ऐसे डिफरेंट कमांड्स हैं. इन सारे कमांड्स में से कम व्हाट माय एक्सपेक्टेशन इज, सेव के लिए आप लोग करोगे वो तो बाय डिफॉल्ट आपको सेव करना ही है. तो वो लास्ट में अगर आप नेविगेट करोगे तो डाउन जब आओगे तो वो डॉक्यूमेंट में आपको मिलेगा. तो उसमें सेव करने के लिए ऑप्शन क्या है, WZ, जैसा अभी शैलेश बोल रहा था. तो
colon WZ is the command which So is WQ sir. WQ sir. W, हाँ, Colon sorry, नहीं, shift plus double Z is for saving and quitting the particular file, and the other alternative option is colon WQ, what Sailesh was saying. Fine. And if you press only colon Q, you will quit without saving, and if you press colon W, you will save the file and file will remain open where you can still edit. Fine. तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो आपको VI एडिटर में मिलते हैं, और VI एडिटर इज वन ऑफ द वेरी पावरफुल टूल बिकॉज मेनी ऑफ द टाइम इफ पर्टिकुलर कंपाइलर इज ओपन, जैसे कि आप लोगों ने बताया कि आपने उबंटू में शायद टर्बो सी का यूज करके किया था, यूजिंग दिस पर्टिकुलर एडिटर ऑल्सो, इफ वी आर इन अ पोजिशन टू इंटीग्रेट इट विथ दी अवेलेबल कंपाइलर्स, जैसे कि आपने अगर जावा वगैरह विंडोज में, अभी आप कौन सी ईयर में हो, सेकंड ईयर में, नेक्स्ट ईयर आप जावा पढ़ोगे, तो जब जावा आप पढ़ोगे तो उसमें देखना आप टेक्स्ट एडिटर से आप अपना टाइप करना चालू करोगे और टेक्स्ट एडिटर में आप अपने कमांड्स लिखोगे, दैट इज अ नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर, उसको डॉट जावा करके आप सेव करते हो, फिर क्या करते हो, कमांड प्रॉम्प्ट में जाके उसको जावा कंपाइलर से रन करते हो. तो इन द सिमिलर फॉर्म the text editor which is available with the Windows, that much powerful tool is this VI, and VI also has all the capacity to do every other task which a normal editor can do, but the only difference is that it is purely command based. Here if you will feel कि मैं अपने एरो की से या अपने माउस पॉइंटर से कुछ मूवमेंट करके एडिशन या कुछ जैसे अपन करते हैं ना नॉर्मल टेक्स्ट में, स्क्रॉल कर लेते, ऊपर चले जाते, नीचे आ जाते, उस प्रकार का कोई भी नहीं होता. इट इज प्योरली अ कमांड बेस्ड ऑन योर कमांड ओनली यू विल बी इन अ पोजीशन टू नेविगेट. ठीक है, अगर आप नॉर्मल इंसर्शन भी करना चाहो तो बिना कमांड डाले आप इंसर्ट भी नहीं कर सकते. दीज आर ऑल आर दी सम ऑफ द ऑप्शंस, एंड इसको अभी सेव कर दो, दैट कोलन WQ आप डाल दो शिफाली, colon WQ, and then we will again reopen it. WQ, yes, enter. ठीक है, now she is back to the terminal. अब इसको वापस अगर वही फाइल ओपन करना है तो now rewrite that particular command जो आपने लिखा है ऊपर, VI शिफाली, enter. तो जो डेटा उन्होंने तब लिखा था वो डेटा एज इट इज है. Now currently she is in a position that if she wants she can reopen it and do the editing option. So these all जो normal आपका एक text editor करता है विंडोज में, उस प्रकार का सारे ऑपरेशन हम using command based VI editor से कर सकते हैं, and it is one of the very strong tool. That's why it is being provided by all the distributors or all the flavors of the Linux operating system. अब VI एडिटर जो हमने पढ़ा है, ये VI एडिटर जो है, इसका VI का मैंने फुल फॉर्म आपको बताया, VI स्टैंड्स फॉर विजुअल एडिटर. देयर इज वन मोर एडिटर दैट इज Vim. जैसे ये VI है वैसा वो VIM है, बट उसके लिए वी नीड Linux टू बी अपग्रेडेड. तो सम ऑफ द Linux माइट बी सपोर्टिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, सम ऑफ द Linux मे नॉट. सो इफ इट सपोर्ट्स तो आप जैसे आप हमने VI स्पेस फाइल नेम डाला है, सिमिलरली VIM स्पेस फाइल नेम डालोगे तो आप VI एडिटर विथ इम्प्रूव्ड वर्जन, उसका फुल फॉर्म है. VIM का मतलब है विजुअल एडिटर विथ इम्प्रूवमेंट, और VI का मतलब है विजुअल एडिटर ओनली. ठीक है, तो ये इस प्रकार से दो एडिटर हैं बाय डिफॉल्ट लिनक्स में, जिसमें बाय डिफॉल्ट जो आता है कंपल्सरीली सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, सभी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, दैट इज अ VI एडिटर which you can see, and this is how you have to implement. अब I feel कि आप लोगों के पास अभी टाइम है, तो today I will not speak more on it. You can utilize that time and practice it, that so that you all the commands that are mentioned in that Word document of VI editor, you are going through it. बस ये ध्यान रखना कि I need कम से कम 10 to 12 different commands you have implemented and taken the screenshot, other than the starting point कि terminal और
वी एडिटर में नाम लिख रहे हैं और उसको सेव कर रहे, रीओपन कर रहे. अदर देन दीज you have to implement 10 different commands and take a proper screenshot for those कि आपने वो एक्टिविटी किया. और जो फाइल बनाएंगे आप वो हर एक के इंडिविजुअल नाम से रहेगा, so that I can identify कि every individual person has done at his or her system, and based on that only we will be providing you the marks. तो ये क्लियर है आपको क्या करना है, ये समझ में आया ना. इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. आप लोग जो माउस से करते हो वो माउस के बदले आप कमांड बेस्ड में करोगे, एज लिनक्स इज इटसेल्फ इज अ कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. तो उस प्लेटफॉर्म पे जाके हम वैसा इंप्लीमेंट करेंगे वो एडिटर को. क्लियर है स्टूडेंट्स? यस सर.